So as a church, we are, learning this series called Back to Basics. We are learning things, the basic things of God, of Christianity, of church, of being a believer. और एक चर्च होने के नाते हम इस श्रृंखला में जा रहे हैं बुनियादी बातों की ओर वापसी, एक कलीसिया होने के नाते और इन सारी चीज़ों को एक विश्वासी होने के नाते हम चीज़ों को सीख रहे हैं. So I want someone to read it in Hindi from Matthew chapter 13. We look at where we left last Sunday. We were not able to finish the last Sunday's message. The title is called Gospel of the Kingdom. और मैं चाहता हूं कि कोई मत्ती 13 से पढ़े जो हमने पिछले बारी देखा था पिछले संडे को. वहां से Matthew chapter 13 verse 24 to 30. मत्ती 13 उसका 24 से 30 तक के. And those of us who are following in English can see the screen, the scriptures. और जो कोई इंग्लिश में फॉलो कर रहा है वो स्क्रीन में देख सकते हैं. This is what the parable is. और यही पैराबल बता रहा है. We know last Sunday we read that. Please somebody read it loudly. कोई जोर से पढ़ सकता है in Hindi. हिंदी में. यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया. स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया. पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया. जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए. इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी ने क्या किया? तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था, फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है. दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उन्हें बटोर दें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं को उखाड़ लो. कटनी तक दोनों को एक साल बढ़ने दो और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्टे बांध दो और गेहूं को मेरे गट्टे में इकट्ठा करो. Hallelujah. हालेलुया. The same parable is explained in Matthew chapter 13. We look at that passage as well. और यही दृष्टांत मत्ती के 13वें अध्याय में भी बोलता है. Can somebody read this time in English? तो आप कोई इंग्लिश में पढ़ने पाएगा. From मत्ती verse 13 36 to 43. 36 से 43 तक के. And those who are following in Hindi, just follow verse by verse, 36 to 43. जो कोई हिंदी में फॉलो कर रहा है वो वर्स बाय वर्स फॉलो कर सकते हैं. Then Jesus sent the multitude away and went into the house, and his disciples came to him, saying, explain to us the parable of the tares of the field. He answered and said to them, he who sows the good seed in the is the Son of Man. The field is the world. The good seeds are the sons of the kingdom, but the tares are the sons of the wicked one. The enemy who sowed them is the devil. The harvest is the end of the age, and the reapers are the angels. Therefore, as the tares are gathered and burned in the fire, so it will be at the end of this age. The Son of Man will send out his angels, and they will gather out of his kingdom all things that offend and those who practice lawlessness, and will cast them into the furnace of fire. There will be wailing and gnashing of teeth. Then the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. He who has ears to hear, let them hear. Jesus used parables, simple story to give profound truth for life, for what he is doing in this world. Where is this world heading? और यीशु मसीह ऐसे बहुत ही सरल दृष्टांतों का उदाहरण लेकर के लोगों को बता रहे थे कि वो कौन सी सच्चाई को उन्हें बताना चाह रहे हैं. He used stories that people could relate and understand. और वो ऐसी कहानियों का उपयोग करा जिससे लोग उसके समझ पाएं और उसको समझने पाएं. But when the eyes are closed, spiritual eyes are closed, spiritual ears are closed, the very simple thing you can't understand. पर जब हमारी आत्मिक आंखें और आत्मिक कान बंद हैं तो उन चीज़ों को हम नहीं समझ पाएंगे, उन सरल चीज़ों को भी. And therefore he needed to explain them. और इसीलिए उसको ये समझाने की आवश्यकता पड़ी. More than that, disciples who are very hungry for God, hungry to know more of God, they asked this question, come on, explain to us. We can't sit down. You have to explain to us. और चेला होने के नाते वो सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद भी वो उनसे पूछ रहे हैं कि हमें बताइए, इसका मतलब हमें बताइए. And if you notice, he goes on to explain who
who is this Son of Man? और अगर इसमें हम ध्यान देंगे तो वो बताता है कि ये परमेश्वर का पुत्र कौन है। Son of Man who came to sow good seed. He sowed the good seed. और मनुष्य का जो पुत्र है वो आया और वो अच्छे बीजों को बोने आया। The seed are the sons of God. और वो जो बीज थे वो परमेश्वर के पुत्र थे। But then he sowed in this field called world. और परंतु उसने क्या किया, उसने संसार के भूमि पर उसको बोया। And as seed grew, और जब वो बीज बढ़ने लगा everyone was sleeping. और सारे लोग सो रहे थे। And sleeping here is not a wrong connotation. और सोना कोई ऐसा यहाँ पे गलत बात नहीं बता रहा है। Because everyone after hard work sleeps. और क्योंकि हम देखते हैं कि सारे कठिन परिश्रम के बाद में वो सोते हैं। While everyone was sleeping, someone else came. और पर जब सब कोई सो रहे थे तब कोई और आता है वहाँ And पर he sowed these seeds. और वो आ करके इन बीजों को बोने लगता है। A different kind of seed. और दूसरे प्रकार का बीज ये होता है। But then, while everyone was sleeping, who did this? और पर जब सब कोई सो रहे थे तो ये चीज किसने किया? Servants asked, who did this? और जब चेले पूछते हैं ये किसने किया? You know the amazing thing, Son of Man or God knew who did this. और ये बहुत ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर का पुत्र जानता था कि ये किसने किया। He said, an enemy has done it. तो वो बोलता है कि ये शत्रु ने किया है। And now in explanation we draw, who is this enemy? The devil. और इसके स्पष्टता में हम देखते हैं तो ये जो शत्रु होता है वो शैतान होता है। Who came and sowed the seeds or weed. और वो आया और वो जंगली बीजों को वहाँ पर पे बो दिया। With what intention? और किस धारणा से उसने बोया? To spoil what God is doing. तो उन सब चीजों को खराब करने के लिए जो परमेश्वर कर रहा To था वहाँ पे, spoil the wheat. वो सारे अच्छे बीजों को खराब करने के लिए। And this parable is more real for our time. और ये दृष्टांत हमारे समय के लिए बहुत वो जरूरी है। You know, to live godly life in this corrupt generation, in this corrupt times is very difficult. इस खराब समय में एक आत्मिक जीवन जीना, एक गॉडली जीवन जीना बहुत ही कठिन है हमारे लिए। You know, you go everywhere, people are always on their phones. आप कहीं भी जाएंगे लोग हमेशा आपको फोन पे मिलेंगे। Phone is made accessible to, lure or, envy the things of this world. फोन के द्वारा हम संसार की बहुत संसारिक बातों के लिए हम उसमें पड़ जा रहे हैं। You know, the life is so projected as lie. तो जो झूठ है वो बहुत ही जीवन एकदम ऐसा दिखाया गया है कि एकदम सब लोग बहुत अच्छा आनंद उठा रहे हैं, बट दैट्स नॉट द रियलिटी. इट्स लाइक अ लाई. तो ये कोई सच नहीं है परंतु ये झूठ है। And there is so much people envy or lure. They like, hey, why cannot I have a car like that? Why cannot I have a house like that? तो उनके अंदर में बहुत ये जलन है, ईर्ष्या है कि क्यों मेरे पास ऐसा टाइप का कार नहीं है, ऐसी टाइप की चीज Why ही मेरे cannot पास नहीं I है। become so famous, so many likes, so many people following? और मैं क्यों फेमस नहीं हो सकता है? बहुत सारे लाइक, बहुत सारे फॉलोवर होने चाहिए। And life from the outside seems so good. और जीवन बाहर से बहुत अच्छा दिखता है, But to live a holy life, परंतु एक शुद्धता का जीवन जीने के लिए Bible says not to envy, पर वचन बताता है कि तुम ईर्ष्या ना करो not to lust the things of the world. और इस संसार की बातों का लालच ना करो। Lust is not in the context of flesh, लालच हमारे शरीर के कॉन्टेक्स्ट की बात में नहीं but बता रहा है, lusting after things, always seeing things. चीजों के लिए वो बता रहा है कि चीजों के लिए हमेशा हम लालच करना। And it's so difficult. और ये बहुत ही कठिन है। This parable is so real. ये दृष्टांत बहुत ही रियल है Teaches some significant, profound things of the life of a believer. और ये बहुत ही मूल्यवादी बातों को हमें बता रहा है एक मसीही जीवन का। If we apply it, we will learn some significant truth and we will, move from one glory to another. और अगर हम इसे अपने जीवन पे लागू करते हैं तो हम एक अच्छे जगह पर पहुंचने पाएंगे। You see, this seed was a weed which looked exactly like wheat. तो ये जो बीज था वो जंगली बीज था परंतु वो एकदम उस बीज के समान दिख रहा है जो परमेश्वर ने बोला। It's called darnel. You can see the picture.
ये उसको डांट बोलते हैं, जो आप पिक्चर में देख भी It सकते हैं। looks like wheat, but it is not wheat. वो उस गेहूं के बीज के समान दिखता है, पर वो गेहूं का बीज नहीं है। And so the enemy works through people. और जो शत्रु है वो लोगों के द्वारा काम कर रहा है। Christ began to reveal things and the nature of what Christ is doing, what God is doing, and what the enemy is doing in this world. और मसीह आया बताने के लिए कि परमेश्वर क्या चीज़ों को करना चाह रहा है और शत्रु क्या हमारे जीवन पे कर रहा है इस संसार के साथ में। We see Christ has his sons, the people of God, those who follow him, those who are his. और हम देखते हैं कि मसीह आया है कि उसके लोग क्या कर रहे हैं और वो कैसे परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं। They are bearing his fruit. और वो लोग उस फल को ला रहे हैं। But then there is another परंतु एक कुछ और भी है, who also works through people, वो भी लोगों के द्वारा काम कर who रहा also है brings people under his influence. और वो भी लोगों को अपने प्रभाव में लाना चाह रहा The है। devil uses people, infiltrate them, adulterate them, make them use against God. और वो जो शैतान है वो लोगों को परमेश्वर के खिलाफ में उपयोग कर रहा है He makes them sin against God. और वो परमेश्वर के खिलाफ उसे पाप करने के लिए उपयोग कर रहा He है makes them practice lawlessness. और वो उन्हें दुष्टता करने के लिए वो बढ़ा रहा है, विद्रोहीपन के लिए। Lawlessness, no law anymore. कोई भी उसमें रूल नहीं है। Isn't that the world look like? We don't need any law. और जो ऐसा बताता है कि हमें कोई नियम की आवश्यकता नहीं है, We want freedom. हमें एक स्वतंत्रता चाहिए। Freedom of speech has crossed so much. There is so much on Instagram and on social media. People saying any rubbish. और इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में हम बहुत सारी गलत बातों को देख रहे हैं। By the way, freedom always comes with the boundary. स्वतंत्रता, हम देखते हैं कि स्वतंत्रता हमेशा एक बाउंड्री के साथ में आता A है good freedom should always be with the boundary. और एक अच्छी स्वतंत्रता हमेशा Because एक boundaries are meant to protect बाउंड्री us. के द्वारा आता है, क्योंकि वो बाउंड्री हमें बचाने But के लिए होती है। lawlessness is a land without boundary. और परंतु जो विद्रोहीपन है वो एक बिना बाउंड्री के बना हुआ And a है। land without boundary, nobody goes pay money to watch a cricket match. They actually throw the garbage. तो एक ऐसा लैंड जिस पर कोई भी पैसा नहीं देना चाहेगा, जहाँ पे So the sons of the evil one produces lawlessness. परंतु ये जो शत्रु लोग हैं वो विद्रोहीपन को लेकर के So आते through हैं। this parable, we are learning some key truths. और इस दृष्टांत के द्वारा हम बहुत महत्वपूर्ण बातों को जानने जा रहे हैं। Last week we learned God is good. और पिछले बार हमने देखा कि परमेश्वर भला है। Do you believe that? क्या आप ये विश्वास करते हैं? Do you believe God is good? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर भला है? We can say on Sunday morning God is good. और हम बोल सकते हैं संडे की सुबह में कि परमेश्वर भला है। But the moment crisis hits, परंतु जब प्रॉब्लम आती है हमारे जीवन में, the moment things happens in life, जब हमारे जीवन में कुछ कार्य होता है, the moment sometime things are all going so well, even the other extreme is true, जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चलने लगता है, we forget God. हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। Can you say God is good? क्या आप बोल सकते हैं परमेश्वर भला है? Can you say someone next to you क्या God is good? आपके बगल वाले को आप बोल सकते हैं परमेश्वर भला है? Now here is another statement. तो यहाँ पे एक अलग बात, एक और God बात is है good all the time. कि परमेश्वर भला है हमेशा। We have heard this, right? ये हमने सुना है। God is good and all the time. God is good God is good all the time. and all the time. God is good. God is gracious and all the time. God is gracious. But some of you are believing the lies of the enemy. परंतु आप में से कुछ लोग हैं जो शत्रु की उस झूठी बातों को मान रहे हैं। Oh, you sinned, God will never accept you. आपने पाप किया है तो परमेश्वर आपको कभी नहीं स्वीकारेगा। The Bible says if you confess your sin, the moment you confess, you are His. परंतु बाइबल का वचन बताता है कि जिस समय आपने अपने पापों को माना वैसे ही आप He उसके हो गए। accepts you. वो आपको स्वीकारता है। God is gracious all the time. परमेश्वर करुणामय है हमेशा। That's His character. ये उसका कैरेक्टर है। So when Jesus is using the parable, the first truth we understand, He came to sow good seed. तो परमेश्वर जब इस दृष्टांत को उपयोग में ला रहा है यीशु, तो वो बता रहा है कि वो एक अच्छे बीज को बोने आया था। We think God is the one
reason behind this. All this is what happening. हम सोचते हैं कि परमेश्वर इन सारी बातों के पीछे जो भी चीजें हो And रही है, sometimes we think God has left us on our own. और कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे पे हमें छोड़ चुका है, हमारी He is not परिस्थिति even में। interested in this lost world. उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है हमारे जीवन में। No, He is interested. नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपनी रुचि रखता है हमारे He is ऊपर। busy doing good things. वो अच्छी चीजों को करने के लिए बिजी है। Just because so much of evil, God does not stop doing good things. जैसे कि बहुत बुरी बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर अच्छे काम करना भूल गया है। In fact, as a believer, I know many of us we testify. You know, though I went through this, I'm so glad I went through this. God did good things in me. एक विश्वासी होने के नाते हम सभी जानते हैं कि हम जिस परिस्थिति से भी जा करके निकले, हम जानते थे कि परमेश्वर एक अच्छी चीज के लिए हमें उस परिस्थिति में डाला था। So, if we get this basic truth in our life, we will be finding hope and strength and grace in times of need, saying God is still good. तो जब इन बुनियादी बातों को हम अपने जीवन में समझ जाते हैं, तो हम जान लेते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ अच्छी बातों को ही करना चाह रहा है। When circumstances hit, nothing goes our ways. We don't get panic. We don't give up on faith. We say God is still good. जब परिस्थिति हमारे जीवन पे आती है, तो हम निराश न होने पाए, परंतु ये जानने पाए, आशा रखने पाए कि परमेश्वर अभी भी भला है। Secondly, the nature in the parable we see, while everyone was asleep, who did this? तो इस दृष्टांत में God knew who did this. इस दृष्टांत में हम दूसरी बात को भी ये देखते हैं कि जब सब कोई सो रहे थे, तब हमने देखा कि कौन जगा हुआ था, तो वो परमेश्वर जगा हुआ था वहाँ पे। God is sovereign. परमेश्वर सार्वभौमिक है। If anything happens in front of us, He doesn't mean that He didn't see it. और हमारे सामने अगर कुछ भी चीज होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर नहीं देख रहा है। Bible says not even a leaf can fall without Him knowing. तो वचन बताता है कि एक पत्ता भी नहीं गिरता है उसके जाने बगैर। What makes God God? His God is all-knowing God. क्योंकि परमेश्वर को परमेश्वर क्या बनाता है? क्योंकि परमेश्वर सारी बातों को जानता है। You see, God is creator and the enemy is a creation. तो ये बताता है कि परमेश्वर रचयिता है, परंतु शत्रु जो है उसका बनाया हुआ ही है। His enemy was an angel in heaven. तो उसका जो शत्रु था वो एक स्वर्गदूत था स्वर्ग में। He's a creation. वो बनाया हुआ है। He cannot even be compared to God. वो कभी भी उस रचयिता से, उस परमेश्वर से नहीं तुलना किया जा He सकता। can't even come equal to His power. वो उसके सामर्थ्य के पास भी नहीं आ सकता है। But there are certain things that took place that who has given Him power. परंतु ऐसी कुछ चीजें हैं जिसके द्वारा उसे थोड़ी सी सामर्थ्य को दी गई है। And so first truth we saw, God is good. The second truth we are learning is God is sovereign. Even though enemy did this, God saw it. तो हम पहली सच्चाई देखें कि परमेश्वर भला है। दूसरी सच्चाई हम देखते हैं परमेश्वर सार्वभौमिक है। हम देखते हैं कि परमेश्वर हर जगह पे सारी चीज़ों को जानता है। And furthermore we see God allows these both to grow, weed and the wheat, shows us more sovereignty of God. और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन बीजों को भी उसके साथ में बढ़ने दिया, क्योंकि परमेश्वर उनके प्रति भी करुणामयी था। Thinking of who? कि किसके बारे में वो सोच रहा That था? while removing darnel, you may crush what? You may crush wheat. तो हम देखते हैं कि जब आप उस जंगली बीज को निकालते रहेंगे, तो हो सकता है उस जंगली बीज को निकालते समय वो अच्छा बीज भी शायद निकल जाए। Isn't God good? कैसा ही परमेश्वर He's भला so है। sovereign. In fact, we know, though it doesn't cover in this parable, Jesus as the good gardener, Jesus as the Son of God, takes up this field under His care and says, I will work on this. I will remove, I will turn darnels or weed into wheat. तो परमेश्वर हम देखते हैं परमेश्वर सार्वभौमिक है। इस दृष्टांत में ये बात नहीं बोल रहा है, परंतु जो यीशु मसीह है वो बहुत अच्छा गार्डनर है हमारे लिए, और वो बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ कि इन जो जंगली बीज है इन पर मैं ध्यान दूंगा और इनको मैं बनाऊंगा। Isn't Jesus good? क्या ही परमेश्वर भला है? How many of us are literally turned from following darkness and now bearing light? और हमें से कितने लोग हैं जो अंधकार में चल रहे थे और वहां से वापस आए और अब फल को ला रहे हैं। That is what Jesus is doing. और यही चीज यीशु मसीह कर रहा So है। we only look at, oh, what a horrible things happening in the world, but Jesus looks at things positively and say, what can I do in this world? हम केवल ये देखते हैं कि संसार में कितनी बुरी चीजें हो रही है, परंतु यीशु देखता है कि मैं इसमें से
से कौन सी भली बातों को the निकालने third पाऊं। important basic truth you might want to note down. The first two, I hope you note it down. It will help you in your journey with God. तो जो तीसरा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, ये सच्चाई है, और भी दो हैं, उन्हें भी आप लिख रहे होंगे, मैं विश्वास करता The हूँ। third one, we said that, there is an enemy. तो तीसरा ये है कि वहाँ पे एक शत्रु So है। there is God, but there is also an enemy. तो एक परमेश्वर है परंतु शत्रु भी है। Why does Jesus wants to know that? क्यों परमेश्वर यीशु चाहता है कि हम इसे जाने? Because all this while enemy has been hiding and deceiving many. क्योंकि इस पूरे समय पे वो शत्रु छुपा हुआ है और बहुत लोगों को धोखा दे रहा है। You notice he doesn't come in the daylight, he comes when everyone is sleeping. तो आप इसमें ध्यान दीजिए कि वो दिन के उजाले में नहीं आए, परंतु वो उस समय आए जब सब कोई सो रहे हैं। And he just doesn't sowed a seed that will be so evidently different between wheat and wheat that the angels will just quickly pick it up. तो उसने कोई बहुत अलग सा बीज नहीं डाला है जो कि एंजल लोग आके उसे इजीली हटा सकते हैं, परंतु उसने एकदम उसी के जैसे दिखने वाले बीज को लाया है। Shows the nature how the enemy works with deception. तो वो उसके स्वभाव को बताता है, शत्रु के स्वभाव को, कि कैसे वो लोगों को धोखा देता And है। all this while he was able to successfully deceive. He deceived Adam and Eve. Through Eve, he deceived them and he caused the whole world. तो इसी के द्वारा हम देखते हैं कि वो पूरे समय पे लोगों को धोखा दे रहा है। उसने आदम और हवा को धोखा दिया, उसने हवा को धोखा दिया और उसके द्वारा पूरे संसार को उसने धोखा देने वाला The बनाया। ultimate reason Jesus sharing this parable to reveal profound truth so we can learn and watch ourselves. तो यीशु मसीह उस सच्चाई को बताना चाह रहा है कि हम अपने आप को सावधान रखें और जानने पाए इन बातों को। So that Jesus began to reveal the identity of the enemy. और यीशु चालू करता है उस शत्रु के स्वभाव को बताने के लिए। So there is an enemy. तो एक शत्रु है He is God's enemy. और वो परमेश्वर का शत्रु है। He uses people. वो लोगों को उपयोग करता है। He too has his sons. उसके पास उसके खुद के बच्चे हैं। And today we learn the fourth important thing. और ये चौथी बात हम देखते हैं, चौथी महत्वपूर्ण बात। And in this fourth important thing we will understand the gospel of the kingdom. और इस चौथे महत्वपूर्ण बात के द्वारा हम जान जाएंगे सुसमाचार के राज्य के बारे में। In the fourth, it is like a continuation from third one, that because there is an enemy and there is God, these two important reality Jesus begins to reveal. तो ये तीसरा सच्चाई के द्वारा उसके आगे पे हम देखते हैं और वो बताता है दोनों बातों की सच्चाई को। Whether anyone likes it or not, whether anyone believes it or not, there is two kingdoms at war against each other. There are only two kingdoms, the kingdom of God and the kingdom of darkness. अगर कोई इसे विश्वास करे या ना करे, इस पर ध्यान दे या ना दे, परंतु यहाँ पर दो राज्य है, एक परमेश्वर का राज्य और एक शत्रु का राज्य। The whole reason for Jesus' parable, the way parable ends, we understand that if the sons of the darkness will land up into a fiery furnace, but the sons of God will land up in the barn like wheat. तो यहाँ पे ये बताता है कि जो परमेश्वर के जो बच्चे हैं वो एक अच्छे जगह पर पहुँचेंगे और जो शत्रु के जो बच्चे हैं वो जा कर के उस आग में जलाए जाएंगे। इसी प्रकार से यीशु मसीह इस दृष्टांत को बता रहा है। Every religion believes in heaven and hell. और सारे रिलीजन इस पर विश्वास करते हैं कि एक स्वर्ग है और एक नरक है। At least on this one, we all can be one. और इस पर हम सारे लोग एक हो सकते हैं, No matter anyone believes it or not. और कोई उस पर विश्वास करता है या नहीं। But there is supernatural reality that there is a kingdom of darkness. परंतु एक अलौकिक सच्चाई है कि एक अंधकार का भी एक राज्य है। So what is the fourth truth? तो चौथी सच्चाई क्या है? Two kingdoms. There are two kingdoms. कि यहाँ पर दो राज्य हैं। And if you understand these things, you will be a good believer. You will be a believer with purpose. You will accomplish things in this life that God has given you. अगर आप इन सच्चाई को मान रहे हैं और जान रहे हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहा है और परमेश्वर इस संसार पे क्या कर रहा है। Turn with me to 1 John chapter 5 verse 19. और मेरे साथ में निकालिए पहला यूहन्ना उसका
5 और उसका 19वां What वचन। does it say? Someone say it loudly in English and in Hindi. वो क्या बोलता है? कोई जोर से पढ़ दे इंग्लिश में और हिंदी में। To keep you awake, I may even give you the words. Maybe Joy will read it in Hindi, but Pallav will read it in English. पल्लव इंग्लिश में पढ़ेगा और जॉय हिंदी में पढ़ेंगे। Maybe give some new people to read out. मैं चाहता हूँ कि कुछ या तो कुछ नए लोग पढ़ Okay, सकते Joy हैं। has a Hindi Bible, so I didn't have an option. Joy, why didn't you read it in Hindi? पहला यूहन्ना 5 उसका 19वां वचन। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। Can you see this? In English, can we read? 1 John chapter 5, verse 19. No. I think you are reading John 5:19. That's fine. Yes. 1 John 5:19 says, we know that we are of. तो हिंदी में क्या लिखा है? 1 यूहन्ना 5 का 19 बोलता है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। We know that we are God's children. हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। But what about the world? परंतु क्या संसार के बारे में क्या है? The whole world. Can you say after me, the whole क्या आप world? मेरे बारे में बोल सकते हैं? सारा संसार। Whole world is in the control of evil one. कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। Evil one. दुष्ट के वश में। In these two kingdoms, there are two kings. इन 2 राज्यों में 2 राजा है। And the kingdom of darkness is led by the devil, an angel who was known as fallen angel. और ये जो अंधकार का जो राज्य है वो उस स्वर्गदूत के द्वारा बनाया जा रहा है जो स्वर्ग से गिराया गया था। In fact, by the apostle we are told, don't be unaware of the schemes of the evil ones. परंतु प्रेरितों के द्वारा ये बताया गया था कि उन शत्रुओं के बातों पे आप फंसे ना। If you are not aware, you will be so easily swayed by or so easily caught up on the things of the evil one. अगर आप उन बातों पे ध्यान नहीं देंगे तो आप बहुत ही आसानी से उसके पीछे पे चले जाएंगे और उसके जकड़ में आ जाएंगे। Because he shows very, palatable thing. He shows very enticing thing. Don't look so good. और वो चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से दिखाता है और सारी चीज़ों को अच्छा तरीके से दिखाता है कि हम उसके बातों पे आ जाते हैं। That's how he showed or he sells sin to us. और वो दिखाता है कि पाप को भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है हमें। In the church, we've got to time and time again preach against sin. और हमें कलीसिया में बार बार उस पाप के बारे में बताना पड़ता है, उसके बारे में प्रचार करना पड़ता है। Why? Because it's important. क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। We are to cleanse ourselves. We are to, wash away from our, past behavior or past living. हमें अपने आप को याद दिलाना पड़ता है, अपने आप को साफ करना पड़ता है हमारी पुरानी बातों से। By the help of Jesus. परमेश्वर यीशु मसीह की मदद के द्वारा। Some of us, we know we were under the powers or the kingdom of this king called devil. और हम जानते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग इस राजा के पीछे थे, उस शैतान राजा के पीछे पे हम थे। You can read this time. Pallav will open Colossians chapter 1:13 and Aditya will open in Hindi. We will understand a little bit more. हम कुलुस्सियों उसका 1 और उसका तीसरा वचन 13वां वचन पढ़ेंगे। See what Christ is doing. हम देखते हैं कि यहाँ पे मसीह क्या कर रहा है। Colossians chapter 1 verse 13. कुलुस्सियों उसका 1 और उसका 13वां वचन। कुलुस्सियों उसका 1 उसका 13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। Yes, in English. इंग्लिश में। You see, we are clearly seeing that God has rescued from a dominion of darkness. तो हम इसमें देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया है। Jesus is in the rescuing business of people coming out of this kingdom called darkness. और यीशु मसीह हमें अंधकार के वश में से छुड़ा रहा है, इस काम में वो लगा हुआ है। Jesus began to reveal the identity of this king. और यीशु मसीह इस राजा की जो अस्तित्व है उसको बता रहा है। He called him as thief. और वो उसे चोर बोल रहा है। In John chapter 10, you can read it yourself.
he reveals that he comes to steal, kill and destroy. और यूहन्ना उसके 10 में वो बताता है, आप बाद में पढ़ सकते हैं कि वो आया, एक चोर के समान आया और वो चोरी करने आया है। He himself was the first sinner. और वही पहला पापी था He was made for glory. और वो महिमा के लिए बनाया गया था। In fact, he would stand in the very presence of God. और वो ऐसा था कि वो यीशु परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होने वाला था। His name was known to be the bearer of light. और उसका नाम जो था उसका मतलब भी ये था कि रोशनी को देने वाला। But because of pride and rebellion, he sinned against God. परंतु घमंड के द्वारा उसने परमेश्वर के खिलाफ में पाप को किया। And ever since, he wanted to rob glory. और वो हमेशा से उस महिमा को चुराना चाहता था। He wanted to rob worship. और हमेशा से उस आराधना को वो चुराना चाहता था। The interesting part that God loves the worshipper. और ये महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर उस आराधकों को पसंद करता है। God definitely deserves worship. और परमेश्वर हमेशा आराधना के योग्य But रहा God है। is not interested only in worship, but He is interested in worshipper. पर परमेश्वर केवल आराधना में रुचि नहीं रखता है, परंतु वो आराधकों पर रुचि रखता The है। enemy is interested in worship, not in the worshipper. और जो शैतान है वो आराधना पर रुचि रख रहा है, ना कि आराधकों पर। All he wants is worship. और वो केवल आराधना को चाह रहा है। He doesn't care whatever you call him. और उसको कोई मतलब नहीं आप उसे कुछ भी बोले। He will go all out to not allowing the true worship to go to God. और वो इस तरीके से जाएगा कि वो किसी को भी परमेश्वर की आराधना करने से रोकेगा। So he is thief. क्योंकि वो चोर है। He robs what does not belong to him. और वो उन चीजों को चोरी करता है जो कि उसका नहीं है। So he is the one who came to Adam and Eve, who belonged to God, and robbed them. और ये वही था जो आदम और हवा के पास में आया और उन्हें चोरी करा। You know the temptation he caused Eve. और हम जानते हैं कि हवा को वो किस तरीके से भावनाओं में बहा। He lied. He's a liar. उसने झूठ बोला, वो एक झूठा है। The enemy is always about lying. जो शत्रु है वो हमेशा झूठ बोलता है। You know, one thing God began to work in my life when I started following Jesus, I said, I cannot lie anymore. और एक चीज़ मैं बताऊंगा कि मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने ये किया कि मैंने उसके बाद में बोला कि अब मैं कभी झूठ नहीं Because बोलूंगा। if I lie, I speak the language of the devil. क्योंकि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मैं शैतान के वचनों को बोल रहा हूँ। That's why I can't speak lies. इसीलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। Secondly, I can't live lie. और मैं झूठ में नहीं जी सकता हूँ। I can't live something else in the front and something else in the back. और मैं ऐसा नहीं जी सकता हूँ कि सामने कुछ और पीछे कुछ और। That's the kind of people who are still under the influence or under the kingdom of darkness. और ऐसे ही लोग हैं जो उस अंधकार के प्रभाव में हैं। So the enemy comes to rob things. और इसी प्रकार से शैतान आया चोरी करने के If लिए। you are not careful, if you don't lock the door, if you leave the door open, will someone not come and rob? अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं है और आपने दरवाजा नहीं बंद किया है तो क्या कोई अंदर आ सकता है? He robs people. वो लोगों को चुराता है। He started robbing God's people. और वो परमेश्वर के लोगों को चुराने You लगा। know, whole world belongs to God. आप जानते हैं कि ये पूरा संसार परमेश्वर को You know, परमेश्वर के लिए हुआ है, you belong to God. कि आप परमेश्वर के हैं, You are God's children. आप परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। Even those who are not following Jesus or does not know Jesus, they are actually God's children. और ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते परंतु वो भी परमेश्वर के बच्चे हैं। But the enemy has managed to deceive them. परंतु शत्रु ने उन्हें धोखा दिया है। And he is robbing people. He robs peace. He robs joy. He robs God's children. वो लोगों के आनंद को, लोगों के उनकी शांति को वो चुरा रहा है। He causes people to sin against God. और वो परमेश्वर के खिलाफ लोगों को पाप करने के लिए भड़का रहा है। Because he knows the trick. क्योंकि वो जानता है इस बात को। Sin separates people from God. और वो जो इस बात को वो जानता है कि जो पाप है वो लोगों को परमेश्वर से दूर करता है। Sin makes them, away from God. और जो पाप है वो परमेश्वर से उनको दूर कर देता है। God's hand is on all children. और परमेश्वर का हाथ हर बच्चे पर है। You know what Bible says? He is not a partial God that sends rain only for the children of
God and children of not send rain on children of evil. तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर कोई पार्शल परमेश्वर नहीं है, परंतु जैसे कि केवल वो कुछ लोगों पर बरसात करेगा, परंतु वो हर किसी के ऊपर बरसात करता है। His hand is on everyone. उसका हाथ हर एक के ऊपर है। But the moment we sin, his hand gets lifted. और जिस समय हम पाप करते हैं तो उनका हाथ ऊपर उठने He is लगता a है, holy God. क्योंकि वो शुद्ध परमेश्वर है। And so the more we sin, the more hands get lifted. और जितना ज़्यादा हम पाप करते जाते हैं उतना ज़्यादा उनका हाथ उठते जाता है, And we give room to the enemy और हम उस शत्रु को वो जगह देने लगते हैं to come into our life and rob everything. और हमारे जीवन पे आने के लिए हम उसे जगह देते हैं और वो सब चुराने की कोशिश करेगा। Think about it right now. आप इस बारे में सोचें अभी। What is that you are doing and you have given open door for the enemy to rob your peace, your joy, your life, your marriage, your finances? तो ऐसा कौन सा चीज़ है आपके जीवन में, ऐसा कौन सा द्वार है जो कि खुला है, जिसके द्वारा शत्रु आपके जीवन में, आपके परिवार में और आपके शादी में वो आ रहा है? That's how the enemy works. इसी प्रकार से शत्रु काम को करता है। But the second reality is very important, परंतु दूसरा बात ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, that there is also a kingdom. परंतु एक दूसरा राज्य भी है, It's called kingdom of heaven. वो है स्वर्ग का In राज्य। fact, the parable begins saying Jesus told another parable. He kept on explaining through parable how is the kingdom of heaven तो ये works. दृष्टांत भी चालू इसी प्रकार से होता है कि किस प्रकार से स्वर्ग का राज्य काम करता है। Kingdom of God is the rule and reign of God. तो परमेश्वर का जो राज्य है वो एक परमेश्वर के राज्य के द्वारा ही चलने वाला है, परमेश्वर के द्वारा चलाने वाला है। We read Colossians chapter 1:13. हम कुलुस्सियों के 1 और 13 में देखे हैं। Those we were in the kingdom of darkness, the dominion of darkness, Christ came to rescue. The word rescue means you are helpless. Someone else has to rescue. तो जो कोई भी अंधकार के राज्य में थे, मसीह आया और उसने वहाँ से उनको बचाया, और वहाँ से बचाने के लिए हमें किसी के हाथ की आवश्यकता पड़ती है। You see, we were so hopeless and we are still because of sin. और हम लोग बहुत आशाहीन थे और अभी भी हम आशाहीन हैं क्योंकि हमने पाप किया। Why did Jesus come? मसीह क्यों आया? What is the gospel? ये सुसमाचार क्या है? Jesus came not to condemn but to save. यीशु आया हमें बचाने के लिए, To fill this gap और इस जो गैप है उसे भरने के लिए, so that we are always in touch with Christ, with God. कि हम हमेशा परमेश्वर के करीब If रहें। there is no gap, God's hand is on us forever. और अगर कोई दूरी नहीं रहेगी तो परमेश्वर का हाथ हमेशा हमारे ऊपर रहेगा। Jesus came to bring this kingdom. और यीशु आया इस राज्य को लाने के लिए, He is the king of this kingdom. और वो राजा है इस राज्य का। God is sovereign over his kingdom. और परमेश्वर सार्वभौमिक है इस राज्य के ऊपर। God the Father, after the crucifixion, gave the kingdom to his son. और क्रूस पे चढ़ाए जाने के बाद में परमेश्वर ने एक पिता होने के नाते अपने बेटे को इस राज्य को दिया। We are all sinners. हम सभी पापी हैं, In fact, because of Adam and Eve, we were born sinners. और आदम और हवा के द्वारा हम सभी पाप में ही पैदा हुए हैं। None of us can say, I am not a sinner. और हमें से कोई नहीं ऐसा बोल सकता कि मैं पापी नहीं हूँ, Because we think, because I have not committed murder, I am not a murderer. और ऐसा हो सकता है कि हम सोचते हैं कि हमने कोई हत्या नहीं किया है तो हम हत्यारे नहीं We हैं। look at sin like that. हम इस प्रकार से पाप को देखते हैं Because I have not sinned, I have not lied, I have not done this, I am not a sinner. कि मैंने झूठ नहीं बोला है, मैंने पाप नहीं किया है तो मैं एक पापी नहीं हूँ। But because of Adam and Eve, the first sinners brought whole, creation under sin. और वो जो पहला पाप आदम और हवा के पाप के द्वारा उसने पूरी रचना को पापी बनाया। Does that mean God cannot meet with sinners? तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर पापियों से नहीं मिल सकता? No, he can, but there should be a blood shedding. There should be a propitiation, something like तो that. I don't ऐसा know नहीं the है कि exact परमेश्वर नहीं मिल सकता, परमेश्वर मिल सकता है, परंतु एक खून की आवश्यकता है, हमें एक बलि की आवश्यकता। To meet with unholy people तो उन अशुद्ध लोगों से मिलने के लिए and to justify them, to make them right so that he can meet with them.
तो उन्हें सच्चा बनाने के लिए, सिद्ध बनाने, सिद्ध बनाने के लिए, to bring righteousness of God in them. और परमेश्वर की धार्मिकता उनमें लाने के लिए। So we will understand this word justification, तो हम इस सिद्धता के वचन को देखेंगे, because this is a very foundational truth for us. और यही एक बुनियादी सच्चाई है हमारे लिए। What do you understand? What is it to become Christian? और एक क्रिश्चियन बनना हमारे लिए क्या है? What is it to become, what does the word mean justify? तो ये जो सिद्धता जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है? We use this word in a very negative way, right? और इस सिद्धता शब्द को हम लोग बहुत गलत नकारात्मक रूप से देखते We हैं। say, oh, you have sinned, now don't justify yourself. तो हम ये बोलते हैं कि तुमने पाप किया है, तुम अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश मत Am करो। I right? We say, don't justify yourself. तो हम ऐसे बोलते हैं कि अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश मत Someone करो। tries to say something, but say, now you're again justifying. तो अगर कोई कुछ बोलने की कोशिश करता है तो हम इसे बोलते हैं कि अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश मत But the करो। Bible uses it in a very good positive. तो परमेश्वर लेकिन इस बाइबल का वचन इस बातों को बहुत अच्छे तरीके से बताता In है। order for us to belong in the kingdom of heaven, we must be justified. उस स्वर्ग के राज्य पर पहुंचने के लिए हमें सिद्ध होने की आवश्यकता We है। must be made right. हमें सिद्ध होने की आवश्यकता है यहाँ पे। All this gap must be filled. और ये जो दूरी है उसे भरने की आवश्यकता है। How does that take place? और ये कैसे हो सकता है? So I'm going to call Joy here. मैं जॉय को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। Joy lives a life. This is all just I'm giving you an illustration. मैं एक उदाहरण बस दे रहा हूँ कि जॉय एक जीवन जीता है This is not true about him. और ये सच्चाई नहीं है उनके बारे में। But Joy grows up in his life, जॉय अपने जीवन में बढ़ रहा है and at the age of 4, a neighbor abuses him. और एक 4 साल की उम्र में उसके पड़ोसी उसके साथ में कुछ दुष्कर्म करते And हैं that shocks him. और उसके द्वारा वो सदमे में है। He gets open to, things that he did not know before. और वो उन चीज़ों को जान गया है जिसको वो कभी नहीं जानता था। And so he believes, everyone you cannot trust. तो इसके द्वारा वो जानता है कि हम हर किसी को विश्वास नहीं कर सकते हैं। A neighbor whom he trusted, उसका पड़ोसी जिस पर उसने विश्वास किया था, but now something wrong happened. परंतु अब कुछ गलत हो चुका है। So he grows up, being with this woundedness. और वो एक चोट के साथ में वो बढ़ रहा है And now he can't trust anyone. और अब वो किसी को विश्वास नहीं कर पा He रहा है। continues his life. वो अपने जीवन पे बढ़ते रहता है He thinks that making money is all what we need. और वो सोचता है कि पैसा ही कमाना मेरे जीवन में है। Because that neighbor did what he did, और जो कि पड़ोसी ने उसके साथ किया उसके he द्वारा held unforgiveness towards him. वो अपने अंदर में अक्षमा को लेने रखा। He didn't do anything yet. उसने अभी तक कुछ नहीं किया है। He is not sinner. वो पापी नहीं है। But Bible says if you hold unforgiveness, you are a sinner. परंतु बाइबल बताती है कि अगर आप अक्षमा अपने अंदर रख रहे हैं तो वो भी एक पाप है। He did not committed murder, उसने कोई हत्या नहीं किया, but unforgiveness leads to bitterness, which is almost leads to revenge and murder. परंतु अक्षमा कड़वाहट के ऊपर लेकर के जाता है जो कि पूरा एक हत्या के समान है। He is a still sinner. वो अभी भी पापी है He is born in sin. और वो पाप में जन्मा है। As he goes on to make money, और जब वो जाता है पैसा कमाने के लिए, he learns that by cheating he can make a lot of money. और वो सीखता है कि चीट करने के द्वारा वो और ज़्यादा पैसे को कमा सकता है। So he cheats. तो फिर वो चीट करने He लगता है begins to rob. और वो चोरी करने लगता है। Not literally people robbing people's houses, लोगों के घर से जाके डायरेक्टली नहीं, but he does not pay tax. और वो टैक्स नहीं देना He देता does है। not pay what should be paid. और वो उन चीज़ों को नहीं दे रहा है जहाँ पे उसे पैसे देने Or he चाहिए। takes bribes. और या तो वो घूस लेने लगता है And he begins to multiply into his sinful nature. और वो अपने इस पाप के स्वभाव में बढ़ोतरी होने लगती है। Some of the things that he has not done but from within is, are the most deadliest sins. और वो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो उसने नहीं किया परंतु अंदर से बहुत ही जहरीले पाप है उसके अंदर। We think, murder or these are the biggest sins. No. Jealousy, selfishness,
anger, bitterness, these are some bigger sins. तो हम सोचते हैं कि हत्या ही बहुत बड़ा पाप है, परंतु ईर्ष्या रखना, लोगों पर अपने पर घमंड रखना, ये सारी बातें भी एक पाप है। Bible says every sinner deserves death. और बाइबल बताती है कि सारे पापी को मृत्यु होनी चाहिए। Though he is living a good life on earth, but he will not land up as a wheat in God's barn. और वो एक बहुत अच्छा जीवन संसार में जी रहा है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमेश्वर के राज्य में उस खेत में बहुत अच्छा गेहूं बन रहा He है। is under the influence of the king called devil. परंतु वो उस राजा के प्रभाव में है, उस शैतान राजा के प्रभाव में है। But someone from ADC reaches out to him. परंतु एडीसी के बीच में से कोई उस तक के पहुंचता है। In IT company, he meets someone. आईटी कंपनी में आप किसी से मिलते हैं Someone says, God loves you. और कोई बोलता है कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है And God accepts you. और परमेश्वर तुम्हें स्वीकारेगा। He wonders, who is this God? और ये सोचने लगता है कि ये कौन सा परमेश्वर And है, first of all, love me. और सबसे पहले वो, क्योंकि वो मुझे प्यार कर रहा I है am such a sinner. और मैं इतना पापी हूँ। You know, Jesus loves every sinner. और आप जानते हैं कि यीशु मसीह हर पापी से प्रेम करता है। Jesus cannot let anyone go where they do not belong. और यीशु किसी को भी ऐसे नहीं छोड़ देता है जहाँ से वो जहाँ के वो Joy हैं। was made by God, belonged to dwell with God. और जॉय परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, परमेश्वर के साथ में रहने के लिए बनाया गया है। And then when he comes to ADC, पर जब वो एडीसी पे आता है he gets to know more about Jesus. और वो यीशु को और जानने लगता है, And though his sins are so much, और हो सकता है उसका पाप बहुत ज़्यादा है, the moment he confess, परंतु जिस समय वो इस बात को स्वीकारता the है, moment he repents, जिस समय वो अपने पश्चाताप करता है, before repentance he believes that Christ died for him. और पश्चाताप से पहले वो विश्वास रखता है कि मसीह उसके लिए मारा गया। All up to this point, और अभी तक के पूरा यहाँ के समय तक there is one devil. Can you come, यहाँ पे Abhishek? एक शत्रु है। अभिषेक, क्या आप आ सकते हैं यहाँ पे? He is not a real devil. ये कोई सच्चा शत्रु He's नहीं just है, acting like one. ये बस शैतान का एक्टिंग कर रहा है। It's good that we always thought devil will be huge. No, हम he is सोचते हैं कि very, शैतान बड़ा है, he deceives well. परंतु शैतान He always accuses. Have you seen what you did, Joy? There is no hope for you. वो शैतान हमेशा से बोलता है कि तुमने क्या किया जॉय, तुम्हारे लिए कोई भी आशा नहीं है, God will also not accept you. कि परमेश्वर आपको नहीं स्वीकारेगा। He keeps him bound in thoughts. वो उसके सोच में उसे घेरे रखता है, But Joy fighting over all those thoughts. और जॉय उस सोच से लड़ने लगता है। Sometimes there is real battle that the enemy is not going to let go one person. तो एक ये बहुत एक अच्छा एक युद्ध होने लगता है कि जो शत्रु है उसे छोड़ता नहीं है, But Joy believes in Jesus. परंतु जॉय यीशु मसीह पे विश्वास रख रहा है। What did Jesus say? वहाँ पे यीशु क्या बोलता है? Say, look at John 1:12. यूहन्ना 1:12 देखें Anyone who receives him, कि जो कोई भी उसको उसको ग्रहण करता है, he gave them what? तो वो उसे क्या देता है? He gave them right. तो वो उसे अधिकार देता है। Right for what? अधिकार क्या का? To become the children of God. परमेश्वर की संतान बनने का। You see, here there is a wheat, supposed to be wheat, but bearing darnel, because always seen darnel. और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये गेहूं का बीज होना था, परंतु वो क्या कर रहा है? एक डानल का बीज बन रहा है। Always doing the things of the evil one. हमेशा शत्रु के काम को कर रहा है। But Jesus परंतु यीशु died on the cross क्रूस पर मारा गया, for everyone like Joy. तो जॉय के समान बहुत सारे लोगों के That लिए, whoever receives Jesus कि जो कोई यीशु को विश्वास ग्रहण करता है will get right to become the children of God. तो वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करे। What does right means? अधिकार का मतलब क्या If है? you have a movie theater ticket, अगर आपके पास मूवी थिएटर का टिकट है, can somebody stop you कि कोई आपको रोक पाएगा वहाँ पे to enter in that gate? कि वहाँ गेट से अंदर घुसने के You लिए? have a right to access. आपके पास में अधिकार है अंदर जाने का। And so Bible says that if Joy receives, he will become the sons. बाइबल बताता है कि अगर जॉय ग्रहण करता है तो वो उसका बेटा बनता है। And the enemy is saying, no, you don't know what you have done.
और शत्रु बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जान रहे हो कि तुमने क्या किया है, You are sinner. आप पापी हो, You will not go. आप नहीं जा पाओगे। This is all religion. ये सब एक धर्म है This is not truth. और ये सच्चाई नहीं है। I can take you to other way to go to heaven. मैं तुमको दूसरी तरीके से लेके जाता हूँ You come स्वर्ग with जाने के me. लिए, तुम मेरे साथ चलो। Can you believe on devil? क्या आप विश्वास करेंगे He is शत्रु known पर? to speak lies. वो इसीलिए झूठ बोलने के लिए ही जाना जाता Never है। believe devil, never believe demon. और आप कभी भी शत्रु पर विश्वास ना करें और ना ही शैतान पर They विश्वास are good करें। in making story. वो कहानी बनाने में बहुत अच्छे हैं। God's story is written 2000 years ago, confirmed by many, and it's there. You can believe in His word. परमेश्वर की कहानी 2000 साल पहले लिखी गई है, बहुत लोगों के द्वारा उसे कंफर्म किया there गया, is आप an पढ़ सकते हैं। accuser, तो एक वो है जो दोष लगाने वाला, always accusing. हमेशा दोष लगाता है। This is what taking place also in the courtroom of heaven. और ये स्वर्ग के कोर्ट रूम पे भी होता है। So God is using this word. Justification is a courtroom word और परमेश्वर इस शब्द को उपयोग कर रहा है that joys before in the court, in the in the witness box, और जो जॉय है वो विटनेस बॉक्स पे खड़ा हुआ है and there comes an accuser saying, he has done this, he has done this, he deserved to be in hell. और यहाँ पे शत्रु आकर के बोल रहा है कि नहीं, इसने ये कार्य को किया है, ये नरक का भागीदार है। But then there is Jesus. Can someone लेकिन come? वहाँ पे यीशु है। क्या कोई आ सकता है? Okay, let's bring Ritesh, रितेश भी आने पाए, our advocate. Hallelujah. हमारे वकील हैं। Jesus comes with the files. और यीशु आता है फाइल्स के साथ में। Not needed this big file, और ऐसा कोई बड़ी फाइल की but आवश्यकता what नहीं he है, has done on the cross. परंतु उसने जो क्रूस पे किया है उसके द्वारा। Jesus comes saying, I have done this for joy. और यीशु आता है और बोलता है कि मैंने ये जॉय के लिए किया है। How someone becomes justified? और कैसे कोई सिद्ध बनता है? When joy says, I receive Jesus. जब जॉय बोलता है कि मैंने यीशु को ग्रहण किया है। How one does receive Jesus? जब कैसे कोई यीशु को ग्रहण करता है? We will look at in Romans chapter 10 in a moment. हम रोमियो 10 को देखेंगे थोड़े समय में। Joy says, I believe in Jesus Christ, जॉय बोलता है कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास रखता हूँ that He died for me. कि वो मेरे लिए मारा गया For my sins, He was punished. और मेरे पापों के लिए उसने सजा को झेला। I confess I am a sinner. और मैं ये बात को मानता हूँ कि मैं पापी हूँ। And He says, I accept Jesus. और ये बोलता है कि मैं यीशु को ग्रहण करता हूँ First of all, as my Lord. और सबसे पहले मेरा परमेश्वर। The moment he prayed that prayer, और जिस समय वो इस प्रार्थना को करता है the Lordship is transferred. और वो प्रभुता बदल जाती है। Hallelujah. हालेलुया। He has no longer Lordship or dominion. और अब इसका कोई भी प्रभुता इसके ऊपर नहीं है। He says, what happened? और ये बोलता है क्या हुआ? Jesus tricked me. यीशु मसीह ने मुझे ट्रिक कर दिया। And so joy receives Jesus as in Lord and Savior. और जॉय यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने लगा। And so Bible says that the moment one receives and confess and believe and pray, all the sins are accounted to Jesus and Jesus' righteousness is accounted to that person. तो हम देखते हैं कि जिस समय आप स्वीकार करते हैं उन बातों पर, तो ये बाइबल बताता है कि यीशु मसीह अब उन सारी बातों को पूरा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। That joy is no longer a sinner but a righteous person. तो जॉय अब कोई एक पापी नहीं है, परंतु एक वो धर्मी व्यक्ति है। The gap that was filled because of joy's wrongdoing is filled by Jesus. तो जॉय के गलत कार्यों के द्वारा जो दूरी बन गई थी, अब वो यीशु मसीह के द्वारा भर चुकी है। That he is now the sons of the living God. अब वो जीवित परमेश्वर के बच्चों में आ चुका है। The enemy has lost him. और जो शत्रु है वो उसे खो चुका है। Jesus begins to restore many under the kingdom of dominion of darkness and bringing them into the kingdom of the Son. और यीशु मसीह इन्हीं कामों को कर रहा है, अंधकार के राज्य में से उनके बच्चों को छुड़ा करके ला करके परमेश्वर की प्रभुता पे ला रहा है। All this while, whatever joy has done is justified because of the cross. इन पूरे समय पे जॉय ने जो भी बातों को किया है अब वो सिद्ध हो चुका है उस क्रूस के द्वारा। The word justification means is
to be released. तो जो शब्द है सिद्धता, इसका मतलब ये है कि वहाँ से छुड़ाया जाना। The moment this happens, what does judge announce? तो यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें हो रही है तो जज क्या घोषणा कर रहा Have है? you seen the courtroom? आपने कोर्ट रूम देखा है? What does God and judge usually announces? तो जो कोर्ट में जो जज होता है वो क्या चीज़ों की घोषणा करता Can है? you say loudly? क्या आप जोर से बोल सकते हैं? What does it says? क्या बोलता है? Not guilty, but in Hindi they say it nicely. Very good. Ba-izzat बरी। bari किया जाता है. You see, when someone is sinner, loses their respect. तो हम देखते हैं कि जो पापी है वो अपने इज्जत को खो देता है। A person, if they are not proven until guilty, they are not criminal. That's what the law says. तो जब तक कि वो जो व्यक्ति है, जब तक कि उसे गिल्टी नहीं बोला But जा रहा है, when तब a तक वो पापी ही है। criminal is taken to jail, what has he lost? परंतु जब उस क्रिमिनल को जेल में ले जाता है तो वो क्या खो देता He है? has lost his respect. वो अपनी इज्जत को खो देता है। In Hindi they say, by restoring the full due respect that he deserved as a son of God is now being released. तो हिंदी में वो बताता है कि पूरे इज्जत के साथ में उसे छोड़ा जा रहा है, उसे रिस्टोर किया जा रहा है। He is not released to go back to the world. तो वो इसलिए नहीं छुड़ाया गया है कि वो संसार में वापस He जाए, is released into the kingdom of the Son whom he loves. तो उस पुत्र के राज्य के लिए उसे छुड़ाया जा रहा है जिससे वो प्रेम करता है। The enemy lost it. और शत्रु को उसे खो चुका है। To some, he still try and accuse them. और वो अभी भी चाह रहा है उस पर दोष लगाने के लिए। You see what happens in this setting. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। If joy still gives in areas of his life, अगर जॉय अभी भी अपने जीवन में कुछ जगह को अपने जीवन से दे रहा है उसे, to the kingdom of darkness, तो उस अंधकार के राज्य के it लिए is possible that the areas of his life can be still under the rule or reign of the evil one. तो ये भी हो सकता है कि उस अंधकार के राज्य पर उसका अभी भी जीवन का कुछ जकड़ रह जाए। Christ offers a life. That's the book. So much things he has for him. और मसीह एक जीवन को देना चाहता है, But if he doesn't give himself to तो Christ, जब वो अपने आप को जब मसीह को नहीं दे रहा है he is robbed for what he is made for. और वो उससे चुराया जा रहा है जिसके लिए वो बनाया गया था। And that is the sad reality और यही सच्चाई है दुख भरी of believers. एक मसीह They जीवन are का, declared righteous, कि हम एक धार्मिक बनाए गए हैं, but they believe in the accuser परंतु वो दोष लगाने पर विश्वास रख रहे who हैं, comes to accuse them day and night. जो कि उन्हें सुबह से शाम तक दोष लगाने आए हैं। Instead of knowing they are being justified and righteous, they focus on sin. और वो सिद्ध और धार्मिक होने के बजाय वो उस झूठ पर विश्वास कर रहे हैं। They don't understand the schemes of the devil, the way he plays up. और उस शत्रु की चाल को वो नहीं समझ रहे हैं। He doesn't causes joy to just say come and sin. That like that nobody will come into believe his. और वो ऐसे नहीं बोल रहा है कि जॉय तुम आओ और पाप करो, ऐसा कोई नहीं बोलता He है, comes with deception. परंतु वो एक धोखे के साथ आता है। But joy says, I do not believe, and I renew my mind. I don't really, buy on to the tricks or schemes of the evil one. जॉय ये बोलता है कि नहीं, मैं इस पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारी धारणाओं पे विश्वास नहीं करता हूँ। The more he yields or stay close to Jesus, और जितना ज़्यादा जब वो इसको विश्वास करता है और यीशु मसीह के करीब रहता the है, more the grip is lost by the devil. और उतना ही ज़्यादा शत्रु का जो जकड़ है वो छूटने लगता A है। level comes where devil knows nothing will work on him. और एक समय आता है जब शत्रु जान जाता है कि अब मेरा जकड़ उस पर नहीं हो Even सकता। if past habitual things makes him fall, but Jesus lifts him up. अगर हो सकता है कि उसके पाप की पुरानी पाप जो हो सकता है वो उसे दूर करने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी यीशु उसे वापस उठाता The है। more he is close to Jesus, joy becomes a new creation. और जितना ज़्यादा वो यीशु के करीब होने लगता है उतना ज़्यादा जॉय एक नया मनुष्य बनने लगता है। This is how Jesus is restoring or removing from Daniel, from the seeds or the sons of the evil one. He is making them the sons of God. और इसी तरीके से यीशु मसीह भी वहाँ पे यही कर रहा है, डानल और गेहूं के बीच में से उनको बना रहा है, निकाल रहा है और वो स्वर्ग के राज्य में उन्हें जोड़ रहा है। The moment you confess, repent, receive Jesus, we will look at that verse now
you come under the kingdom of God. जिस समय आप ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं उसे, तो उसी समय आप उस परमेश्वर के राज्य में जुड़ने लगते हैं। Some of us may have still given keys to the evil one because of the things that is still you are giving by sinning against God. और हम में से बहुत से लोग अभी भी हैं जो उस चाबी को दे रहे हैं शैतान को, जो कि परमेश्वर का होना चाहिए। Sin makes people to disobey God. और जो पाप है वो लोगों को परमेश्वर से दूर होने में वो करता है। Sin gives authority in people's life for the enemy to cause curses, havoc, chaos. और जो पाप है वो लोगों को अधिकार देता है परमेश्वर से दूर होने का। The more we hate sin, the more we love God. और जितना ज़्यादा हम पाप से नफरत करेंगे उतना ज़्यादा हम परमेश्वर से प्रेम The करेंगे। more we love sin, we become the haters of और God. जितना ज़्यादा हम पाप को पसंद करेंगे उतना ज़्यादा हम परमेश्वर से नफरत करने Can we give लगेंगे। them a clap? Thank you. क्या क्यों ना हम इनको ताली दें Aren't you blessed that Christ justified you? कि क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको सिद्ध किया He है has not justified you to live a worldly life, कि परमेश्वर ने आपको सिद्ध इसलिए नहीं किया है कि आप संसार के जीवन को but जिए, He has justified you so that you can bear wheat and bear His character. परमेश्वर ने आपको सिद्ध इसलिए किया है कि आप उसके चरित्र में चलने पाए और आप उसके समान बनने पाए। अब Shweta, you can put that last slide of the prayer. This is what many of us have prayed this prayer. और इसमें से हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रार्थना को कर चुके This हैं। is what Romans 10:9 makes us do. रोमियो 10:9 ये बताता है हमें करने के लिए। It says that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। It's not just about being saved, it's about the whole transference of the lordship of Jesus. और ये केवल एक बचाए जाने की बातें नहीं कर रहा है, परंतु ये बता रहा है कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें पूरी रीति से बदल रहा है। The more you make Jesus the Lord of your life, the enemy has no power over you. तो जितना ज़्यादा आप यीशु को अपना प्रभु बनाएंगे अपने जीवन में, उतना ज़्यादा शत्रु का जकड़ आप में से दूर होते जाएगा। In fact, you don't know. The enemy gets scared of you, then you getting scared of the enemy. कि आप ये भी नहीं जानते होंगे कि जो शत्रु है वो भी आपसे डरने लगता है। I was very fearful person. और आप जानते हैं कि मैं बहुत ही डरपोक व्यक्ति था। Growing up, I had seen spirits. I had seen, demons. और जैसे जैसे मैं बढ़ रहा था, मैं वो दुष्ट आत्माओं को देखता था और शत्रुओं को देखता था। Being a guy, I used to not go out after 10 o'clock. और मैं 10 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। I would always think something wrong will happen to me. और मैं हमेशा सोचता था कि अभी कुछ मेरे साथ में होने वाला But है। Jesus restored my life. परंतु यीशु ने मेरे जीवन को बदला। When I came to Jesus, I became so courageous that I don't no longer fear the enemy. जब मैं यीशु के पास आया तो अब मैं उससे डरना, शत्रु से डरना छोड़ दिया मैंने। That's what Jesus does. यही यीशु हमारे जीवन पे कर रहा है। Just because there is enemy doesn't mean we fear him. तो इसका मतलब ये नहीं है कि शत्रु है, इसका मतलब कि हम उससे डरें। If you love Jesus, you follow him, you worship him, you are no longer sin centric, you are righteousness centric. अगर आप परमेश्वर पे हैं और आप ये जानेंगे कि आप परमेश्वर पे ध्यान को केंद्रित करेंगे, ना कि शत्रुओं पर। Christ is interested in restoring you as his wheat, as his sons. और मसीह चाहता है आपको बदलना, एक अपने पुत्र और पुत्री के समान आपको बदलना The चाहता है। best joy is that you get to participate in the business of rescuing with Christ. और सबसे बड़ा आनंद की बात ये है कि आप मसीह के कार्यों पे अपना भागीदारी को देने पा रहे हैं। When I knew that the devil should be scared of me, I started creating chaos in his territory. तो जब मैंने जाना कि शत्रु मेरे से डर रहा है, तो मैं उनके राज्य में और भी द्वंद्व को लाने लगा। I started with my Lord Jesus Christ and started to save many out of the hands of the evil one. और मैंने प्रभु के साथ में प्रभु को जाना और प्रभु के साथ में और लोगों को बचाने में मदद किया। And that's the best joy. और ये वही एक अच्छा आनंद है। I've seen lives transformed. मैंने देखा कि जीवन बदलते If हुए। they have continued with the
with the devil, they would have not seen life. अगर वो शैतान के साथ में बढ़ते रहते तो वो ये जीवन नहीं जीने They would पाते, have physically died. वो शारीरिक रीति से मर But जाते। Christ used me to rescue many. परंतु परमेश्वर ने मुझे उपयोग किया कि मैं बहुत And लोगों I को बचा नहीं counted the पाऊँ, best job that I do. और मैंने ऐसा जॉब को किया जो मैं हमेशा कर That सकता I था, wanted to give my life to this job. और मैं अपनी इस जॉब के द्वारा कुछ जीवन दे सकता था, To see lives restored and transformed is the best joy. और लोगों के जीवन को बदलते हुए देखना एक बहुत अच्छा जॉब है। To bring truth in people's life, I said, God, I want to be the speaker of truth. लोगों के जीवन में सच्चाई को लाना अगर अच्छा है तो मैं परमेश्वर से बोलता था कि मैं सच्चाई बोलने वाला बनूं। And that's what, not only speaker, to live also truth. केवल बोलने वाला नहीं परंतु सच्चाई में जीने वाला भी। That is the prayer when we pray, we become right with God. और यही प्रेयर हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम सिद्ध होते हैं। Some of us have prayed this prayer. हम में से कुछ लोग ने इस पर प्रार्थना किया होगा। If you have not received Jesus as Lord and Savior, अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में नहीं स्वीकारा है, if you think you are not justified, you got to pray this prayer. अगर आप सोचते हैं कि आप सिद्ध नहीं हुए हैं तो आप इसको प्रेयर कर सकते हैं। In one prayer, Christ comes into your life. एक प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर मसीह आपके जीवन में आ The सकते हैं, kingdom of God comes into your life. परमेश्वर का राज्य आपके जीवन पे आ सकता है, You come back to the kingdom of God. और आप वापस उस परमेश्वर के राज्य पर आ Bible सकते says हैं। the whole heaven rejoices. बाइबल बोलता है कि पूरा स्वर्ग आनंद मनाता है, That is the basic truth. और यही बुनियादी बात That है the kingdom of heaven so much to offer for कि you. परमेश्वर का राज्य आपके सामने बहुत सारी चीजों को दे It's सकता है, not just about going to heaven, कि ये केवल स्वर्ग पे जाने की बात नहीं but है, participating with Jesus Christ to rescue so many. परंतु यीशु मसीह के साथ में भागीदारी होना और भी लोगों को बचाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Are you blessed? क्या आप आशीषित हैं? Are you learning something क्या important? क्या आप कुछ सीख रहे हैं? Some of these things you know, but it is good to be established in the foundation. इन सारी चीजों को आप जानते हैं परंतु फिर भी इन सारी चीजों को जानना हमारे लिए जरूरी We है। refresh our memory for basics. हम अपने अपने बुनियादी बातों को और रिफ्रेश कर रहे हैं। Don't be scared of sin and the enemy and darkness. You are supposed to be the ones, a victorious one, fighting. You're supposed to be not defensive but offensive. आप पाप से डरे नहीं, क्योंकि आप पाप से लड़ सकते हैं, आप डिफेंसिव हो सकते हैं With Jesus Christ. यीशु मसीह के साथ में। Not with your own righteousness, आपकी धार्मिकता से नहीं but the righteousness of Jesus, परंतु यीशु मसीह की धार्मिकता से, which comes as free gift. जो कि हमारे जीवन में एक फ्री उपहार है। Hallelujah. हालेलुया। Can we close our eyes? क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें। This simple basic truth that there is a kingdom of heaven and there is kingdom of darkness. और ये सरल जो सच्चाई है कि एक स्वर्ग का राज्य है और एक अंधकार का राज्य है। We are children of God. हम आपके बच्चे होने के नाते We are children of heaven. हम स्वर्ग के बच्चे हैं, And with the help of Christ, और यीशु मसीह की मदद से with the empowerment of the Spirit, और आत्मा की आवश्यकता से we are powerful. हम सामर्थी हैं We are victorious. और हम लोग विजयी हैं। Maybe lately you have been feeling defeated. और हो सकता है कि आप कुछ समय पहले धोखा पाए हुए लग रहे होंगे, हार गए हुए लग रहे हैं. हार गए होंगे, सोच रहे होंगे। You are not called to be living a life of defeat, आप उस हार में जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, but Christ has chosen you परंतु मसीह ने आपको चुना है to build a victorious one. एक विजयी बनाने के लिए। Let's all close our eyes. सब अपने आंखों को बंद करें, Focus on Christ. मसीह पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। Jesus wants to restore you. यीशु आपको रिस्टोर करना चाहता है। You can say, Lord, I'm sorry. आप बोल सकते हैं, परमेश्वर मुझे माफ करें, I have wandered off. मैंने पाप किया I है, have given areas still in my life to the enemy. मैंने अपने जीवन में कुछ जगह को दिया है शत्रु को, I take back those areas. मैं उन जगह को वापस लेता हूँ। Jesus, I make you the Lord over those areas. यीशु, मैं आपको प्रभुता देता हूँ उन सारी जगहों पर। I believe with you I can overcome. मैं विश्वास करता हूँ कि आपके द्वारा मैं इन सब से निकलने पाऊँगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद।